Hello dear students, I welcome you to today's class. As you all know, we are doing chapter 4 agriculture, and the topic that we have started yesterday was the impact of globalization on agriculture. एग्रीकल्चर में ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है. इट हैज had so much of effect that now we find, I am not saying that we find a decline in agriculture, but yes, the other sectors are coming up very fast. Other sectors, what I mean by sectors is primary, secondary and tertiary. So अभी because of the globalization, कल बहुत सारे factors हमने discuss किए. We discussed about the causes of, पहला तो हमने globalization discuss किया. Globalization in agriculture, globalization economic terms में अगर हम discuss करेंगे, then the explanation would be totally different. Got it? We did not discuss globalization from the economic point of view, but globalization had an effect from the geography point of view. We discussed globalization. And where did this concept come from? This concept had come from the British period, British era, when हमारे यहाँ से सामान उठा के वो लेके जाते थे. They used to take the goods from India to fulfill the needs of their own country. अपने कंट्री का इनको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी. दे हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, ऑल द रॉ मटेरियल दैट दे नीडेड. गॉट इट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द रॉ मटेरियल दैट दे नीडेड, all this raw material they had taken from India. They were taking क्या raw material लेके जाते थे? They were taking cotton, they were taking indigo. Got a lot of raw material that they were carrying from India was fulfilling the requirements of their industries. Globalization started from British period, and Indian industries had seen a very low times because during this British period, Britishers had ruined the complete local industrial centers, local industrial ways, and that has led to a decline in agriculture. उस समय का जो decline था ना, we are facing the after effects till date. Believe me. एक चीज पता है, in a very in a very simple language I would like to explain here is कि Britishers are very ahead than India. इंडिया से बहुत आगे हैं वो. गॉट इट? लेकिन यहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि दे आर द पीपल हु हैव ड्रेन्ड द इंडियाज वेल्थ. इंडिया में आज जितनी भी गरीबी है, ऑल दिस the times, the worst times that India is seeing, it is because of the drain of wealth that has happened during the time of the British era. So British period में it started, okay, and its after effects are felt till now, till date. आज तक हमको इसकी जो है after effects feel कर रहे हैं हम. They also wanted the indigo from चंपारण. नील की खेती करने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. 1990s के बाद with special reference changes after 1990s was felt. कैसे? How did it happen? Because of the Green Revolution. देखो यहां पे एक चीज समझना है आपको. रेवोल्यूशन तो हम कर देते हैं. वी इन द वेक ऑफ डेवलपमेंट हम क्या करते हैं कि वी वांट टू डेवलप. In the wake of development, we take certain initiatives which is, immediately तो आपको समझ में आता है कि वाह क्या बात है. The production increased, the farmers were happy, making lot of money, and just 1 acre land say they were earning
₹1 lakh सालाना उनको मिल रहा था. Suddenly the production increased and the income of the farmers increased. After effects हमने क्या देखा? When we think of development, when we think of growth, we forget कि इसका after effects भी हो सकता है. After effects में क्या हुआ कि all the soil quality was destroyed and एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए lot of land degradation had happened because of the green revolution. Green revolution क्या था? It was all the use of technology in agriculture. टेक्नोलॉजी देखो, मशीन यूज करते हैं, दैट इज रियली गुड, दैट इज नीडेड, दैट इज द कॉल ऑफ द आवर. वो तो आप मशीनें यूज करेंगे तभी आपका एग्रीकल्चरल बहुत अच्छा है, आउटपुट आएगा. लेकिन जो केमिकल्स यूज करते हैं, द केमिकल्स दैट आर बीइंग यूज्ड, इसके वजह से बिग इफेक्ट दैट वाज फेल्ट वाज दैट लैंड डिग्रेडेशन हैड हैपेंड. ओवर यूज ऑफ केमिकल्स वाज देयर. हाँ, पानी के लॉट ऑफ वाटर इज ऑल्सो नीडेड. व्हाट हैपेंस इज टेक्निकल बेस में in the when the technology is used on a very large scale, तो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से लोगों की सेहत खराब होने लग गई. ओके, तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन से वी हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स जीन रेवोल्यूशन. Instead of using insecticides and pesticides, got it? We have to do research work. Remember, the Indian Council for Agricultural Research, ICAR, वहां से ये जीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ कि जो चावल हम ग्रो कर रहे हैं, the rice that we are growing, the pulses that we are growing, the wheat that we are growing, तो भाई ग्रो कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो उसमें देयर हैज टू बी सम ब्रीडिंग हैपनिंग देयर हैज टू बी सम क्रॉस कनेक्शन हैपनिंग देयर, तभी तो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. तो वी हैव टू सी दैट वी आर यूजिंग मॉडिफाइड सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स, rather than using insecticides and pesticides on a very large scale. हम इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं कि हमारे को फायदा हो, फार्मर्स को फायदा हो. गॉट इट? तो अब द एरा दैट इज कमिंग नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टाइम. बिलीव मी चिल्ड्रन, अब तो बहुत ज्यादा चल गया है. You will go to the market. When you go to the supermarkets, you will find sections which are talking about organic products, which comes from organic farming. नाम सुना है आपने? Organic products are coming because are found in the market because of the organic farming. Now what is this organic farming? Got it? This organic farming is in a very, आजकल बहुत ज्यादा, it is in vogue today. Vogue means बहुत चल रहा है. Why? Because it is made without, ये जो हम फार्मिंग करते हैं इसमें केमिकल्स आर नॉट यूज्ड, माय डियर चिल्ड्रन. और अब पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, people are becoming career conscious, people are becoming, lot of things are there जिसमें awareness आ गई है. People have become aware and they have understood the after effects of green revolution. So chemicals such as fertilizers and pesticides ये सब नहीं यूज होता है, तो it does not affect the environment in a negative manner. Organic farming does not affect environment in a negative manner.
कोई नेगेटिविटी नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में खाद का इस्तेमाल होता है। पहले जो होता था, अभी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारी दादी नानी होती है, दे आर गांव में, ठीक है, दे हैव बीन, उनका ब्रिंगिंग कहाँ पे हुआ है, गांव में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, एंड वहां पे जो द प्रोडक्ट्स दैट वर ग्रोन देयर, वहां का जो दाल चावल उन्होंने खाया है, वहां की जो सब्जियां खाई हैं। तो एवरी टाइम इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड इज नॉट, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वहां यूज होता है वेयर पीपल आर टेकिंग इट फॉर द बिजनेस पर्पज। राइस इज बीइंग ग्रोन ऑन 10 एकर्स ऑफ लैंड। 10 एकर्स ऑफ लैंड है तो 10 बोरी अनाज, 10 बोरी चावल घर पे रखेंगे, बाकी का मार्केट में ले जाएंगे। मार्केट में जो सामान ले जा रहे हैं वो अब कौन खा रहा है, क्या है, इससे तो उनको मतलब नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स, गॉट इट? तो इट डज, they are not concerned with that, but insecticides and pesticides and chemicals have been used on these products, got it? ये जो राइस ग्रो हुआ है इसमें यूज हुआ है, which we are intaking, we are taking it from the market and then we are consuming that. Will it have an effect on our health? Yes, it does have an effect on our health. हमारे हेल्थ पे इसका असर पड़ता है, got it? तो we have to understand, economics feel कि इंडियन फार्मर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है। अभी इन द प्रेजेंट टाइम्स लॉट ऑफ एफर्ट्स आर बीइंग टेकन बाय सर्टेन, कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो एफर्ट्स कर रही हैं, ले रही हैं, and if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population is rising, okay, please understand, ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो एक कॉन्सेप्ट है विच इज डेवलपिंग नाउ अ डेज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो द साइंटिस्ट आर सेइंग कि that farmers do not have a very bright future in India, okay? Future is not very bright. Got it? Please try to understand. Farmers, the way they are working in India, उसमें क्या होगा कि एक तो हमारे यहाँ पे रिमेंबर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 2 acre ऑफ लैंड इज डिवाइडेड इनटू 10 पीपल। कितना लैंड होल्डिंग्स आर गेटिंग स्मॉलर डे बाय डे। लोगों के पास जो जमीन है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो इंडियाज रूरल पॉपुलेशन आने वाले दिनों में which depends upon 250 million hectares of agricultural land, हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चरल लैंड है, we are calculating that 250 million hectares of agricultural land. अभी दिस इज एन अप्रॉक्स डाटा, अभी एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कितनी जमीन है, बट अभी जितना मतलब हमको पता है, मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज देयर। दिस एग्रीकल्चरल लैंड दैट इज देयर, ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है, हाउ इज दैट एग्रीकल्चरल लैंड बीइंग यूज्ड? Okay, and an average of less than half a hectare, आधे हेक्टेयर से भी कम पर पर्सन फार्मर्स को मिल रहा है, बिकॉज देयर आर अराउंड रूरल पॉपुलेशन इज 833 मिलियन। ओके, 2011 का डेटा है, दिस इज ऑल ओल्ड डेटा। अभी हो सकता है कि डेटा इज चेंज्ड, ऑफ कोर्स हो सकता है क्या 10 years में डेटा चेंज होना ही होना है। The next population count will be happening in 2021, अभी next year होगा। तो जो census will happen, new data will come up। डेटा देखो 10 साल में चेंज होता है, आप डेटा आपको हर साल आपको नया डेटा नहीं मिलेगा। So when this census will be there, in that we will be knowing about the
new times and new calculations that are there. तो क्रॉपिंग पैटर्न द इंडियन फार्मर्स को क्या करना चाहिए? क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना चाहिए पहले तो. रिमेंबर, द क्रॉपिंग पैटर्न हैज टू बी चेंज्ड. भाई सजेशन से दे सकते हैं, फॉलो करना है तो उनका अपना काम है ना. दे विल बी फॉलोइंग दैट. द फार्मर्स दे हैव टू फॉलो दैट. तो दे शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न. एंड सीरियल से खाली दाल चावल ग्रो करके तो नहीं होगा ना. दे शुड ग्रो फूड दैट इज हाई वैल्यू क्रॉप्स. High value crops like sugarcane and tea, coffee and this kind of cash crop kind of, जिसमें थोड़ा ज्यादा पैसा है. क्या होता है, देखो आपको जिस चीज में ज्यादा पैसा मिलेगा, where you are getting more money, वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ज्यादा होता है. Little bit you have to invest more. Got it? तो if the incomes will increased incomes and reduced environmental degradation will what happen? Fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops. Got it? It is being irrigated quite less, and much less irrigation is needed than rice and sugarcane. लेकिन क्या होता है, इंडियन फार्मर्स सोच नहीं पाते हैं. They couldn't think of the other high value plants. ओके, तो उनको अपने आप को थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा कि कम पैसे में ज्यादा पैसा, कम पैसा लगा के लेस ऑफ इनपुट एंड मोर ऑफ आउटपुट कैसे हो सकता है. हाउ इट कुड बी डन. गॉट इट? फार्मर्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस. And India's climate conditions that are there, it can be harnessed. इसको climatic conditions are good for agriculture. India has been a country which was based on agriculture. Okay, तो high value crops we can grow. काफी सारा हमारा output जो है वो increase कर सकता है, improve कर सकता है. But then awareness is needed. अवेयरनेस इज नीडेड. खाली अवेयरनेस से नहीं होता है, इनिशिएटिव इज ऑल्सो नीडेड. खाली सोचने से नहीं होगा ना कि हाँ पता चल गया है, कर क्या रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग. सो अवेयरनेस एंड इनिशिएटिव, बोथ द थिंग्स आर नीडेड. तो क्रॉपिंग पैटर्न में जो चेंज हमने कहा, वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न. जैसे दाल चावल जो ग्रो कर रहे हैं, तो हाई वैल्यू क्रॉप्स दे शुड ग्रो. दैट इंडिया विल हैव टू इंपोर्ट फूड. Okay, 1960s में what has happened कि it would have been a disaster, लेकिन इंडिया imports cereals, दाल चावल कभी कभी इंपोर्ट करते हैं, while exporting high value commodities. टी कॉफी हम बाहर भेजते हैं और कभी कभी हमको दाल चावल इंपोर्ट करना पड़ता है, कम पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस. गॉट इट? क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पे कि हमको कभी कभी प्रॉब्लम होती है. तो we have to see which crops can be grown, which is bringing in lot of money for the farmers. Farmers को काफी सारा जिस चीज से फायदा हो रहा है, हमको उसी चीज की खेती करनी चाहिए. Got it? Please try to understand. And economies जैसे इटली, इजराइल, चिली, all these places that are there, यहाँ पे भी lot of agriculture is happening. वो क्या कर रहे हैं? They export farm products. fruit है, olive है, specialty seeds है, wine है, and cereals import करते हैं. high value goods export करते हैं, low value goods import करते हैं. तो क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं? कैन वी टेक दिस रिस्क? सारे टाइम दाल चावल ग्रो नहीं करके we grow some crops other than dal chawal. We have to think about it and we have to plan about it. Got it, children? We have completed the chapter. We need to discuss the question and answers. So with the discussion of question and answers, the chapter would be over and then we can start with some other chapter. प्लीज इसको समझने की कोशिश करो.
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितना जल्दी हम सिलेबस खत्म करेंगे उतना टाइम वी विल बी गेटिंग फॉर रिविजन वर्क. गॉट इट? सो दिस चैप्टर इज ओवर. हिस्ट्री में योर सिलेबस इज ऑलरेडी ओवर. ओके, अभी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इज ऑल्सो लेफ्ट. वी नीड टू सी कि पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ चैप्टर्स हमको जल्दी जल्दी करना है. वी विल बी डूइंग दैट. Right now what I do is I will be discussing the question and answers. Got it, children? So let's discuss with the question and answers. So children, as you all know, we have completed the chapter agriculture, and we will be discussing the question answers now. With the discussion of question answers, the everything will be very easy and simple. Because seeing the importance of this chapter, got it? This chapter is really important. तो question and answers भी आपको अच्छे से करना है ये सारा. First question that was there is the MCQ, multiple choice questions. Which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? Single crop on a large area, so plantation, yes. A rabi crop, rabi and kharif. I told you have to segregate the crops grown in the summers and grown in the winters. Got it? तो rabi crop में यहाँ पे आप ग्राम मार्क करोगे. Which one of the following is a leguminous? Leguminous is pulse. Okay, full of protein and vitamin. So pulses are there. For the growing of crop को grow करना है तो what is the what has been the announcement made by the government in the support of crop? So it would be MSP, minimum support price. Okay, MSP is the minimum support price. ये मतलब कम से कम दाम जो है वो मतलब the farmers should get the required amount that they have invested in growing that crop. उस क्रॉप को ग्रो करने में फार्मर का जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है कम से कम उतना पैसा तो फार्मर को मिलना ही चाहिए. गॉट इट? फर्स्ट थिंग इज दिस MSP. क्वेश्चन क्या है? नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ. बेवरेज, ड्रिंकिंग वाला. गॉट इट? So tea and coffee. Okay. टी आप देख लो, इसमें तो आपको टी के बारे में आप बता ही सकते हो. And plant grows well in the tropical and the subtropical climate, and a deep and fertile, well drained soil is needed, rich in humus and organic matter. Humus means lot of nutrient content in the soil. सॉइल में ना काफ़ी सारा मतलब इतना लोमी सॉइल होना चाहिए, मॉइस्चर वाला थोड़ा सा सॉइल होना चाहिए जिसमें कि लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब वाइटामिन्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल इज देयर विच इज गुड फॉर हेल्थ. गॉट इट? सो गुड फॉर द सॉइल, नॉट फॉर द हेल्थ. आई एम सॉरी चिल्ड्रन. टी आप दे दो. उसके बाद टॉप ऑफ इंडिया आप कोई भी दे सकते हो. देखो इट इज गिवन just to guide you how to write down the answer. आंसर किस तरह लिखना है ये बताया गया है, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से अपने तरीके से भी लिख सकते हो. इट इज एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. गॉट इट? सो वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड. राइस आप दे सकते हो, व्हीट आप दे सकते हो, स्टेपल क्रॉप. नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इट इज ग्रोइंग. एंड व्हीट अगर आप देते हो तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में व्हीट इज ग्रोन इन अबंडेंस. गॉट इट? दैट इज देयर. इसके बाद द वेरियस, आई टोल्ड यू वन थिंग वेरी इंस्टीट्यूशन इज देयर. सो द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स. फार्मर्स के लिए जो इंट्रोड्यूस किया गया है, which has brought lot of changes in the lives of farmer and in the way they are growing the crops. Got it? तो
we have to understand these institutional reforms in a very different manner. Got it? तो आप इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखो क्या क्या दिया हुआ है. क्रॉप इंश्योरेंस इज देयर, ओके, अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, फायर, इसके खिलाफ, इसके एवज में आपको क्रॉप का इंश्योरेंस. क्रॉप इंश्योरेंस इज अ वेरी गुड थिंग. पता है क्या होता है, अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो फार्मर्स को लॉस नहीं फेस करना पड़ेगा. इमीडिएटली दे विल गेट द मनी फ्रॉम द इंश्योर्ड कंपनी, जिस कंपनी से भी इंश्योर कराया है. देन क्रॉप इंश्योरेंस इज देयर, MSPs there, minimum support price policy. Then subsidy on resources such as power, fertilizers. सब्सिडी मिलना बहुत ज़रूरी है. फार्मर्स वॉट एवर मनी दे आर इन्वेस्टिंग, उसमें if the government is not supporting them with some money, then it would be difficult for the farmers. Agricultural inputs and resources, पावर एंड फर्टिलाइजर्स. उसके बाद KCC, किसान क्रेडिट, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ऑल दीज थिंग्स. ये सारे आप पॉइंट्स देख लेना. इट इज देयर इन द बुक. लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूस डे बाय डे. कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंस? ऑफ कोर्स, स्ट्रेच योर इमेजिनेशन. आप जो आंसर इसमें लिखा हुआ है खाली उसी पर यू डोंट हैव टू स्टिक. इफ एग्रीकल्चरल लैंड फिनिशेस तो क्या होगा? ओ गॉड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फूड शॉर्टेज. सबसे पहला तो फूड इंपॉर्टेंट थिंग इज द फूड प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स. जितने भी अनाज हैं सबके दाम बढ़ जाएंगे. अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर फार्मर्स, दिस इज ऑल मेंशन्ड हियर. Shortage of supply of raw materials for agro industries and export trade जो हो रहा है as agricultural products, ये भी कम हो जाएगा. And major section of international trade also would be difficult. बहुत international trade पे अगर effect पड़ेगा तो बहुत problem हो जाएगी. Then you have these questions which you have to write in 120 words. Suggest the initiative that has been taken by the government to ensure the increase in agricultural production. Initiative क्या क्या लिया है government ने? I have discussed it in detail. Collectivization program is there. Please understand the collectivization program, consolidation of holdings, separation and abolition of zamindari. All these things are given priority. Then land reform was the main focus of the first 5-year plan. Land reforms. Green revolution again was based on the use of, आप समझ लो green revolution में क्या क्या चीजें बदली हैं. Package technology, white revolution. These are some of the big strategies initiated to improve the इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट हैव टेकन दीज इनिशिएटिव्स. यू नीड टू मेंशन अबाउट इट. इसके बारे में आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है वही चीज़ें, वही पॉइंट्स आप इसमें रिपीट कर सकते हो. MSP, क्रॉप इंश्योरेंस, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर, ये सारा देखो. सम थिंग्स आर कॉमन. क्वेश्चन बदल बदल के आते हैं, लेकिन बात है कि आपका बोर्ड में एग्रीकल्चर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन तो आएगा नहीं, एक ही क्वेश्चन आएगा. तो आप उसको समझ के सोच के आंसर बना के लिख सकते हो. यहां पे इट इज रिपीटेड, लेकिन व्हेन यू विल बी राइटिंग एट दैट टाइम इट वोंट बी अ रिपीटेड आंसर, इट वुड बी अ सेल्फ मेड आंसर जिसमें आप सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे. गॉट इट? देन सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. कॉलोनियल रूल के टाइम से था. रॉ कॉटन एंड स्पाइसेस वेर एक्सपोर्टेड. इंडियन फार्मर्स रिवोल्ट and indigo supply was the main criteria by the Britishers. So globalization के वजह से it is boon for somebody, मतलब किसी के लिए आशीर्वाद साबित हुआ है, किसी के लिए शराब बन गया है. boon, it has its boon and bane.
Try to understand boon also and bane also for Indian agriculture. Got it? और liberalization के बाद Indian farmers are facing new challenges. Indian agriculture को we have to make successful by improving the conditions of marginal farmers. Negative effects of green revolution has to be stopped. Then we have to promote organic farming. Organic farming तो already stress हो रहा है. Please understand. And क्रॉपिंग पैटर्न बदलना पड़ेगा. खाली दाल चावल के बारे में नहीं सोचना है. वी हैव टू थिंक अबाउट ग्रोइंग सच क्रॉप्स विच इज गिविंग लॉट ऑफ मनी. काफ़ी सारा पैसा जिससे आ रहा है वो वाली चीज़ें खेती करनी है. सो हियर दिस इज देयर जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस. अब टॉपिक दिया हुआ है. आई वुड एक्सपेक्ट दैट यू राइट दिस आंसर ऑन योर ओन. ओके चिल्ड्रन, प्लीज डू दैट. एंड मैप आप देख लो, यहाँ पे मैप दिया हुआ है. द सेम मैप दैट इज गिवन इन योर बुक. मैप वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर से एक ना एक मैप वर्क तो जरूर आता है. इट डज कम. ओके, ये आप देख लो. दिस मैप्स आर देयर. परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन, व्हीट कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बदलाव कर दिया है. दैट दे हैव मेंशन्ड परसेंटेज. दिस इज नॉट देयर इन द बुक. गॉट इट. ये थोड़ा सा अलग हटके इन्होंने बताया है, तो आप इसको एक बार देख लोगे तो यू कैन डू इट. वैसे जो बुक में दिया हुआ है जस्ट स्टिक टू दैट बिकॉज यू नो इट्स एनसीईआरटी एंड सीबीएसई. सीबीएसई में वही आंसर्स एक्सेप्टेड है जो कि आपके इसमें दिया हुआ है. गॉट. Thank you children and all the best to you. Next class में we'll start some new chapter. Got it?